Welcome to Canongia Study Material. Today topic books the 22nd of November 2025 top current affairs news GK in Hindi and English and newspaper analysis. एक विश्व मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is World Fisheries Day celebrated every year? B. 21 the 21st of November. C. 22 the 22nd of November. D. 23 the 23rd of November. White heavy check mark answer. B. 21 the 21st of November. Memo check explanation यह दिवस समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। It promotes healthy marine ecosystems and sustainable fisheries. 2025 में विश्व मत्स्य पालन दिवस का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ? Where was the national event of World Fisheries Day 2025 held? A. Mumbai. B. Chennai. C. New Delhi. D. Kochi. White heavy check mark answer. C. New Delhi. Memo check explanation राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। The department organized the national event in New Delhi. 3 भारतीय कला महोत्सव इंडियन आर्ट फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the second edition of the Indian Art Festival? A. Prime Minister. B. The Vice President. C. President. D. The Culture Minister. White heavy check mark answer. C. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। Memo check explanation उन्होंने कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। She inaugurated the event to promote Indian art and culture. 4 केंद्रीय मंत्री अजीत बैरवा ने किस मिशन पर रिपोर्ट जारी की? Union Minister Ajit Bawa released a report on which mission? A. डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल इंडिया मिशन। B. सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा 2032 बटा सेमीकंडक्टर एम्बिशन 2032। C. मेक इन इंडिया बटा मेक इन इंडिया। D. ऊर्जा सुरक्षा मिशन बटा एनर्जी सिक्योरिटी मिशन। White heavy check mark answer. B. सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा 2032। Memo check explanation रिपोर्ट में भारत के ग्लोबल चिप निर्माण बाजार में अग्रणी बनने की रणनीतियां शामिल हैं। It outlines India's plan to become a major semiconductor hub by 2032. 5 अक्टूबर 2025 में भारत का कोर सेक्टर ग्रोथ कितना रहा? What was India's core sector growth in October 2025? A. 8%. B. 9.5%. C. 10.2%. D. 11%.
Asterisk white-headed check mark answer, B. 9.5% asterisk. Asterisk memo check explanation asterisk. यह वृद्धि मजबूत औद्योगिक उत्पादन और बेहतर आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है. It indicates strong industrial output and economic activity. 6. राज्यसभा ने किस न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी? Asterisk Rajya Sabha approved the appointment of which judge to the Supreme Court? A. Justice Shah. B. Justice Gupta. C. जस्टिस रमीज साइलानी बटा जस्टिस रमीज सैलानी. D. जस्टिस राजीव मेहता बटा जस्टिस राजीव मेहता. Asterisk white-headed check mark answer, C. जस्टिस रमीज साइलानी. Asterisk memo check explanation asterisk. इनकी नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई. This appointment increased the strength of the Supreme Court. 7. भारत में 2024-25 में अब तक कुल रक्षा उत्पादन कितना दर्ज हुआ? Asterisk what is India's defense production so far in 2024 to 25? A. 1.10 लाख रुपए करोड़. B. 1.54 लाख रुपए करोड़. C. 1.75 लाख रुपए करोड़. D. 2.01 लाख रुपए करोड़. Asterisk white-headed check mark answer, B. 1.54 लाख रुपए करोड़. Asterisk memo check explanation asterisk. यह घरेलू रक्षा निर्माण में तेजी से हो रही वृद्धि को दर्शाता है. It shows strong growth in domestic defense manufacturing. 8. भारत में जन्मे कछुए मुक्ति किस प्रजाति से संबंधित हैं? Asterisk the turtles mukti born in India belongs to which species? A. Olive ridley. B. Hawksbill. C. Green turtle. D. पंच शाकु प्रजाति बटा 5 शकु स्पीशीज. Asterisk white-headed check mark answer, D. पंच शाकु प्रजाति. Asterisk memo check explanation asterisk. मुक्ति एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है जो जैव विविधता संरक्षण की बड़ी उपलब्धि है. It is a rare species, showcasing biodiversity conservation efforts. 9. भारतीय नौसेना का स्वतंत्रता संग्राम 2025 आयोजन कहाँ होगा? Asterisk where will the Indian Navy's Freedom Struggle 2025 event be held? A. The Mumbai. B. Goa. C. Visakhapatnam. D. New Delhi. Asterisk white-headed check mark answer, D. नई दिल्ली. Asterisk memo check explanation asterisk. भारतीय नौसेना 2025 के समारोह नई दिल्ली में आयोजित करेगी. The Indian Navy will host the celebration in New Delhi. प्रधानमंत्री मोदी जी 20 सम्मेलन के लिए किस शहर की यात्रा करेंगे? Asterisk PM Modi will visit which city for the G20 summit? A. Cape Town. B. Durban. C. Johannesburg.
D. Pretoria. Asterisk Whitehever check mark answer. C. जोहान्सबर्ग. Asterisk memo check explanation asterisk. वे 3 दिवसीय यात्रा पर G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. He will attend the G20 Leaders Summit during a 3-day visit. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें. 22 नवंबर शनिवार. एक मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका पहुंचे. एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेटकर स्वागत किया. ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात की. 2 बिहार में 20 साल बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा. बीजेपी के सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी. फाइनेंस जेडीयू के पास. मंगल पांडे फिर स्वास्थ्य मंत्री. 3 भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश. पायलट की भी मौत. तेजस दूसरी बार क्रैश. पहली बार पायलट की जान गई. 4 सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए. इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकीकृत और सरल ढांचा काम करेगा. 5 श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब वे देश के कानून हैं. मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि श्रम नियमों का आधुनिकीकरण श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की उभरती दुनिया के साथ संरेखित करके यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत लचीले उद्योगों की नींव रखता है. 6 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को हैदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा जताया कि इस कार्यक्रम से पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक विरासत की समझ को बढ़ावा देगा. 7 भागवत बोले आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं. संघ न राजनीति करता है, न किसी संगठन को दूर से नियंत्रित करता है. 8 अपने 3 दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन भागवत ने इम्फाल में जनजातीय नेताओं से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा, आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है. इसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को पूर्ण बनाने के लिए गठित हुआ है. 9 जो भी देश के लिए कर सकता था वो किया. इस संतुष्टि के साथ जा रहा. आखिरी कार्य दिवस पर भावुक हुए सीजेआई गवई. 10 कार्यवाही के दौरान साथी जजों ने सीजेआई गवई के योगदान को याद किया. बता दें कि गवई जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजेआई हैं. गवई ने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि हमारा संविधान समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है और मैंने अपनी जिम्मेदारियां इन्हीं 4 दीवारों के भीतर रहकर निभाईं. 11 डीके शिवकुमार बोले, गुटबाजी मेरे खून में नहीं है. कर्नाटक में सीएम फेरबदल को नकारा. विधायकों के दिल्ली जाने पर बोले, सभी को मंत्री पद की चाहत. 12 शिवकुमार गुट के विधायकों के शक्ति प्रदर्शन पर कांग्रेस सख्त. सुरजेवाला बोले, अनावश्यक बयान न दें.
13 कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने कहा कि वह कानून तोड़ने या लोगों को डराने वाली राजनीति का समर्थन नहीं कर सकती। 14 महाराष्ट्र ठाणे में कार ने 4 से 5 वाहनों को कुचला, 4 की मौत और 3 घायल। ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से हादसा हुआ, उसकी भी मौत। 15 उदयनिधि स्टालिन बोले, संस्कृत मरी हुई भाषा, मोदी को तमिल की चिंता तो हिंदी क्यों थोप रहे। बीजेपी बोली, तमिल में भी संस्कृत के कई शब्द। 16 डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने खेला डांडिया, अनंत अंबानी भी थे साथ। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की बेटी की शादी, कृति सेनन ने किया रिहर्सल। 17 भारत राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारा, आखिरी गेंद पर 3 रन बनाकर मैच टाई कराया, सुपर ओवर में वाइड फेंककर हारे। 18 एंड वर्सेस सा दूसरा टेस्ट आज से गुवाहाटी में, शुभमन बाहर, ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। रेड्डी को मौका संभव, साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। जय श्री राम। शनिवार 22 नवंबर 2025 के मुख्य समाचार। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री, नीतीश मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा। अल्मोड़ा से 60 केजी विस्फोटक मिला, 161 पैकेट में था जिलेटिन स्टिक, मचा हड़कंप। हवा में खाई कलाबाजी, फिर अचानक। दुबई में तेजस फाइटर क्रैश, पायलट की मौत। अमेरिका के अल्टीमेटम पर भड़के ज़ेलेंस्की, शांति डील में कैसे खो दूं आत्मसम्मान। एसआईआर पर ममता बनर्जी के पत्र पर भड़के अमित शाह, बोले घुसपैठियों को बचाने की कोशिश। आज से लागू हुए नए लेबर लॉ, 1 साल में ग्रेच्युटी, गिग वर्कर्स को सुरक्षा और ओवरटाइम पर डबल पे। किसानों के लिए बड़ी राहत, अब आधार के मुताबिक खतौनी में नाम संशोधन की तैयारी, खत्म होगी बड़ी परेशानी। बांग्लादेश में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप, कई सेकंड तक हिलती रहीं इमारतें, 3 की मौत। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कानपुर की फैक्ट्री में 4 मजदूरों की मौत, कमरे में आग जलाकर सोने से घुटा दम, सुबह मिली लाश। लुधियाना एनकाउंटर में खुलासा, सरकारी इमारतें थी निशाने पर, लॉरेंस गैंग से जुड़े दोनों आतंकियों के लिंक, सलमान खान के घर फायरिंग मामले से भी कनेक्शन। पुलिस बोली 2020 के दिल्ली दंगों में टेरर फंडिंग हुई थी, दंगे से पहले कई मीटिंग हुई, पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी। हरिद्वार में 1000 रुपए करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग, बोले वक्फ बोर्ड है तो सनातन क्यों नहीं। 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी, सरकारी नौकरियां में भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी। LIV पूरा देश परिवार के साथ, दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में पायलट की मौत पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख। तालिबान को तख्तापलट की धमकी देना शहबाज मुनीर को पड़ेगा भारी, छीन सकती है कुर्सी।
साइबर क्राइम और वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दुनिया हो एकजुट, सीएम योगी। इस्तीफे के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, किया पुस्तक विमोचन। राइजिंग स्टार्स एशिया कप खिताब का सपना टूटा, रोमांचक सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारा भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, सुप्रभात। जय हो। Asterisk, please hit like beating heart and share asterisk.